people, including all. Trump, the Lebanese love you so much. Would you visit Lebanon? You extend the ceasefire. What makes you extend that? I don't know if we're going to have to, but if we need to, I would do that. President Trump. Wait, that's important. Sorry. What are you telling the airlines and the oil companies about the way you're going to open up the trade? So if you look at the oil and if you look at the price we're paying, it's about half what people thought it would be if you did what I had to do. We had to take this journey to the Middle East in order to get rid of a nuclear weapon. There would have been, if we didn't hit them with the B-2 bombers, or if I didn't kill the Barack Hussein-Obama deal, the nuclear deal, which was a disaster, we would have had nuclear weapons exploding in the Middle East and beyond. I believe I've been able to stop that. I think we have a very successful negotiation going on right now. And I think it'll be, if it happens, it'll be announced fairly soon. And that'll give us free oil, free Hormuz Strait. Everything will be nice. And I think your oil price will go down to lower than what it was before. And I think a lot of good things will happen. Just for clarity, you're willing to extend the ceasefire? So we'll see. I don't know that we'll have to. Ideally, we'll, but if I needed to, I would. The Lebanese people love you so much. What do you think? The Lebanese people love you so much. What's your message for them? And you will visit Lebanon after this deal? I will do that. At the right time, I would certainly go there. You think this war in Ukraine, Putin doesn't want to stop it apparently. He keeps bombing Ukraine. You think this war has the potential to go on for years more? Well, it should have never started. If I were president, the war in Ukraine never would have started with Russia. But it's going on. Hopefully it'll get over soon. The First Lady came out last week and said she had no link to Jeffrey Epstein. Who did? The First Lady, Melania. She had none. Why did she come out and say that last week? Because the fake news was saying she did, and she had none, and I think that's been proven. It bothered her that the fake news was being fake news. That's all. She just wanted to clarify. Are you surprised? Who's taking care of Hezbollah? Do you think that they are destroying the deal that they are trying to make? We're going to see how it all works out, but they'll be working and coordinating. If you know Lebanon, right? So they'll be working with Hezbollah. If you fire Jay Powell, interested in acquiring Iranian oil? What? Are you still interested in acquiring Iranian oil after the? Well, we'll see. I mean, we have a very good relationship with Iran right now, as hard as it is to believe. And I think it's a combination of about 4 weeks of bombing and a very powerful blockade. The blockade is maybe more powerful than the bombing, if you want to know the truth. Are you going to make the Arab countries pay a portion of all of the costs? I think they'll make that. I think they're going to make that contribution. I think the Arab countries, because we've done a lot, I think they'd make a contribution toward the cost. Not been involved. Iranian assets without any conditions if you make a deal? We're going to see what happens, but I think we're very close to making a deal with Iran. You'll be the first to know, but I think we have a chance. And if that happens, oil goes way down, prices go way down, inflation goes way down, and you're going to have, much more importantly than even that, you won't have nuclear holocaust. Are we happening now? What talk happened, Mr. President? It's coming up to 18:10 GMT. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं है, तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं, ईरान से इस हफ्ते के आखिर में मुज़ाकरात हो सकते हैं। ईरान से इस वक्त हमारे बहुत बेहतर ताल्लुकात हैं और ताल्लुकात सही समत पर जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हिज़्बुल्लाह और लबनान के साथ जो है इसराइल के मुज़ाकरात जारी थे, अमरीका उसमें शामिल था, मुज़ाकरात हो गए हैं और उसमें भी जंग बंदी पर इत्तेफाक हुआ। इस माहिदे में हिज़्बुल्लाह भी शामिल है। अच्छा लग रहा है कि हम ईरान के साथ मुआहिदा करने जा रहे हैं। अगरचे ईरान के साथ डील नहीं होगी तो दोबारा जंग शुरू हो जाएगी, लेकिन इस वक्त मामलात बहुत बेहतर सिमत की तरफ बढ़ रहे हैं। ईरान से इस हफ्ते के आखिर में मुज़ाकरात हो सकते हैं, हम डील कर रहे हैं, ईरान खुद मुआहिदा करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हैं, तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं, दुनिया भर के लिए अच्छी खबर है। ईरान से इस हफ्ते के आखिर में मुज़ाकरात हो सकते हैं, हम डील के बहुत करीब हैं। लबनान और इसराइल के दरमियान इस वक्त जो है मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं और जंग बंदी का जो ऐलान हुआ इसमें हिज़्बुल्लाह भी शामिल है। सीज़ फायर के तनाजुर में देखते हुए इसको मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा और मुज़ाकरात को हतमी शक्ल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अच्छा लग रहा है कि हम ईरान के साथ
मुआहिदा करने जा रहे हैं। अगरचे ये डील नहीं होती, अगर ये मुआहिदा नहीं होता तो दोबारा जंग होगी। उन्होंने ये भी कहा कि तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं, ईरान से इस हफ्ते के आखिर में मुज़ाकरात हो सकते हैं। ईरान से इस हफ्ते के आखिर में हतमी मुज़ाकरात हो सकते हैं। और दूसरी जानिब लबनान की जानिब जो जंगबंदी का मुआहिदा हुआ है वो भी बहुत बेहतर हुआ है, उसमें हिज़्बुल्लाह भी शामिल है। ईरान के पास एटमी हथियार नहीं है, इस बात की भी उन्होंने जो है आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा कि ईरान से इस हफ्ते के आखिर में मुज़ाकरात हो सकते हैं। ईरान जौहरी हथियार ना रखने पर रजामंद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े कर दिया है, हम ईरान से मुआहिदे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तेल की कीमतें आलमी मंडी में नीचे आ रही हैं, जो कि दुनिया भर के लिए बहुत बेहतर बात है। लबनान सीज़ फायर में हिज़्बुल्लाह भी शामिल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस हफ्ते के आखिर में मुज़ाकरात हो सकते हैं। मैंने 10वीं जंग बंद करवाई है। इससे कबल भी वो जो है मुतादिद जंगें रुकवाने का, बंद करवाने का क्रेडिट लेते रहे, तो इस जंग के हवाले से उन्होंने कहा कि ये जंग रुकवा कर उन्होंने 10वीं जंग रुकवा दी है। ईरान के साथ डील ना हुई तो जंग दोबारा होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अच्छा लग रहा है कि हम ईरान के साथ मुआहिदा करने जा रहे हैं, अगर ईरान के साथ डील नहीं होगी तो दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुज़ाकरात सही समत में आगे बढ़ रहे हैं। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें भी नीचे आ रही हैं। ईरान से इस हफ्ते के आखिर में मुज़ाकरात हो सकते हैं। हम डील के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। ईरान से इस हफ्ते के आखिर में मुज़ाकरात हो सकते हैं। ईरान पहले जिन बातों पर राज़ी नहीं था, अब उन बातों पर वो रजामंद हो चुका है। ईरान से इस हफ्ते के आखिर में मुज़ाकरात हो सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ईरान से इस हफ्ते के आखिर में मुज़ाकरात हो सकते हैं। ईरान जिन बातों पर पहले रजामंद नहीं था, अब उस पर वो राज़ी है। तेल की कीमतें आलमी मंडी में नीचे आई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के साथ बेहतर सिमत में आगे बढ़ा जा रहा है और इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं है। लबनान सीज़ फायर का जिक्र करते हुए कहा कि लबनान सीज़ फायर में हिज़्बुल्लाह भी शामिल है। ये मुआहिदा भी बेहतर अंदाज में हुआ है। उन्होंने कहा कि ईरान से मुआहिदा करने जा रहे हैं और इस हफ्ते के आखिर में मुज़ाकरात हतमी सूरत इख्तियार कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है कि हम ईरान के साथ मुआहिदा करने जा रहे हैं। अगर ये डील ना हुई और अगर ये मुआहिदा नहीं होगा तो दोबारा से जंग होगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं। ईरान से इस हफ्ते के आखिर में हम मुआहिदा करने जा रहे हैं। हम डील के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। लबनान और इसराइल के दरमियान भी ये सीज़ फायर हो चुका है और इस सीज़ फायर में हिज़्बुल्लाह भी शामिल है। ईरान से इस हफ्ते के आखिर में हम मुआहिदा करने जा रहे हैं। तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जैसे ही मुज़ाकरात का ऐलान हुआ और ये सिलसिला शुरू हुआ, आलमी मार्केट में तेल की कीमतें नीचे आईं और ये सिलसिला जारी है, जो कि दुनिया के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है कि हम ईरान के साथ मुआहिदा करने जा रहे हैं। अगर ईरान के साथ डील नहीं होगी तो दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ईरान जौहरी हथियार ना रखने पर रजामंद